الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس محفل میں حسن معاشرت کے تعلق سے، حسن سلوک کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ دے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہے۔ لوگ چھل کپٹ، ایک دوسرے پر رحم نہ کرنا، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، ایک دوسرے سے حسن سلوک نہ کرنا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حسن سلوک کے فضائل بتائے جائیں اور بتانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا جائے تاکہ دیکھ کر کے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: امک، تیری ماں۔ قال ثم من، کہا اس کے بعد؟ قال امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من، تو آدمی نے کہا پھر کون؟ قال امک، کہا تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر چوتھے مرتبہ جب پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، کہا اس کے بعد تمہارا باپ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ہمارے ماں اور ہمارے باپ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان دونوں میں سے، یعنی ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بچتے ہیں، تمہارے پاس رہتے ہیں، تم ان کو پاتے ہو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو ڈپٹو نہیں، بلکہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے باعزت بات کرو، ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، کہا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ قال ثم ایو، کہا اس کے بعد کون سا؟ قال بر الوالدین، تو کہا اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، اور جو لوگ ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کرتے وہ جان لیں کہ قیامت کے دن انہیں اس کا بہت بڑا خسارہ ہونے والا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں سے جو ہے صلہ رحمی کرنا یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنا اور
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، بڑے فضیلت کا کام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جس کو یہ چیز پسند ہو کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، ویوسع لہ فی اثرہ، اور اس کے بعد اس کا نام باقی رکھا جائے، یعنی اس کا نام لیوا کوئی باقی رہے، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتوں کو مضبوط کرے، بڑھائے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن ہمارے سماج میں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے کٹے کٹے رہتے ہیں اور ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ جوڑے، بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی رشتہ توڑ لے، قطع تعلق کر لے، تب وہ اس سے رشتہ جوڑے۔ تو حقیقت میں یہی وہ آدمی ہے جو رشتے کو مضبوط کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، اور رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رشتوں کو مضبوط کریں۔ اگر ہم اپنے رشتوں کو مضبوط نہیں کریں گے تو ایک تو ہماری روزی تنگ کر دی جائے گی، دوسرے ہمارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی فیقعدنی علی فخذہ ویقعد الحسن علی فخذہ الآخر۔ وہ کہتے ہیں اسامہ بن زید کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے تھے اور اپنے ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حضرت حسن کو دوسرے ران پر بٹھاتے تھے، پھر ہم دونوں کو ثم یضمہما، پھر دونوں کو اپنے سے چمٹا لیتے تھے، باہوں میں لے لیتے تھے، ثم یقول، پھر کہتے تھے اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، کہتے تھے اے اللہ ان دونوں پر رحم کر، بے شک میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، بچوں سے محبت کرنا چاہیے، اور بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یتیم بچہ اگر ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کو اچھی طرح سے رکھنے والا، اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، اور انہوں نے اپنے شہادت والے انگلی اور انگوٹھے کو جو ہے دونوں کو ایسے کھڑا کیا، اشارہ کیا، وفرج بینہما شیئا، اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں بالکل جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے سماج میں جن عورتوں کے شوہر مر گئے ہیں، جن کو ارملہ بولا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ان کو دیہاتی میں راڑ بولا جاتا ہے، تو اگر ایسی عورتیں ہیں جن کے شوہر مر گئے ہیں یا بہت مسکین لوگ ہیں، بہت فقیر لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، کہا
کہ जिन औरतों के शौहर मर गए हैं उनके लिए और मिस्कीनों के लिए कोशिश करने वाला, उनके लिए जुस्तजू करने वाला, उनकी मदद करने वाला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की तरह है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं उनकी तरह है, या जो दिन में नमाज़ पढ़ते हैं, जो रात में नमाज़ पढ़ते हैं और दिन में रोज़ा रखते हैं उनकी तरह है। यानी इसकी बड़ी फजीलत है। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरीके से अपने बच्चियों की तरबियत करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, ये भी बड़े सवाब का काम है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा व दम्मा असाबिअहु। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने दो बच्चियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो सिन्ने बुलूगत को पहुँच गई, तो क़यामत के दिन मैं और वो एक साथ होंगे। व दम्मा असाबिअहु यानी एक ही साथ होंगे। इसको मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरीके से जो हमारा पड़ोसी होता है उसके साथ हुस्न सलूक करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े सवाब का काम है। अल्लाह ने कहा, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने कहा, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इसी तरीके से वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, इसी तरीके से मिस्कीनों, यतीमों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक करो। वल जार ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब, और जो तुम्हारा करीबी पड़ोसी है उसके साथ भी हुस्न सलूक करो। तो मालूम ये हुआ कि चाहे पड़ोसी आपका करीबी हो या थोड़ा सा दूर हो, सब के साथ हुस्न सलूक करना है अगर आपका पड़ोसी है। इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जारि हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथुहु। कहा कि हज़रत जिब्रील मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि वो पड़ोसी को वारिस ही बना देंगे। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो जब पड़ोसी के ताल्लुक़ से इतना ज़्यादा कहा गया है कि अल्लाह के नबी जब डरने लग गए थे कि वारिस बना दिया जाएगा, तो सोचो उसका कितना हक़ है हमारे ऊपर। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु क़ीला व मन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा कहा, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। क़ीला व मन या रसूल अल्लाह, तो कहा गया अल्लाह के रसूल ऐसा कौन आदमी है जिसके बारे में 3-3 बार आप कह रहे हैं? क़ाला अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़ुहु। तो अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसा आदमी जिसके तकलीफ़ों से, जिसके ईज़ा से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, तो ऐसा आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता। तो आप सोचिए कि पड़ोसी का कितना बड़ा हक़ है। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर आता है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि औ क़ाल लि जारिहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि। बुखारी मुस्लिम। इसी तरीके से एक हदीस में है कि आदमी मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वही अपने लिए पसंद ना करे जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। यानी जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे या अपने पड़ोसी के लिए पसंद करे। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो मालूम हुआ कि पड़ोसी जिसको हम बहुत ज़्यादा सताते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बदगुमान रहते हैं, हकीकत में उसका हमारे ऊपर बड़ा हक़ है। हमें उसके साथ हुस्न मुआशरत करनी चाहिए, उसके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए और जितना मुमकिन हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। जो आज हम छोड़ बैठे हैं, इसी वजह से हमारे समाज में बिगाड़ पैदा हो गया है। इसी तरीके से लोगों पर रहम करने की बड़ी फजीलत आई हुई है, इसका बड़ा सवाब है। हदीस में आता है, जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। बुखारी मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह उस आदमी पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। अब अपनी हालत देखो कि हम कैसे हैं। थोड़ा सा कमज़ोर दिखा, उसको दबाने लग गए, उस पर जुल्म करने लगे, ज़रा सा भी रहम नहीं आता है हमको। कोई छोटा बच्चा है, उसको तड़ाक से मार दिए, अपने ही बच्चे को मार देते हैं।
अपना ही बच्चा डरता रहता है। अगर आदमी बाहर है और घर में आ गया तो बच्चे घुस जाते हैं कमरे में डर के मारे कि अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। इतना डरावना शक्ल हो गया है, इतनी गलत चीज़ें हमारे समाज में जारी हो गई हैं कि बच्चा अपने बाप से डरता है। जबकि अगर बाप बच्चे पर रहम करे और उसके साथ हुस्न सलूक करे, उसके साथ सही तरीके से पेश आए, तो हालत ये ना होगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर और सारे लोगों पर रहम करें। इसी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम है लेकिन आपको ईज़ा नहीं देता, आपको तकलीफ़ नहीं देता, तो उन लोगों से भी हुस्न सलूक करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम। अल्लाह तबारक तआला मना नहीं करता जिन लोगों ने तुमसे कताल नहीं किया, जंग नहीं किया दीन के बारे में, और ना ही तुमको तुम्हारे घर से नहीं निकाला तुमको, ना तुमसे जंग किया, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों के साथ हुस्न सलूक करने से और उनके साथ इंसाफ करने से अल्लाह तबारक तआला नहीं रोकता। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला तो दर हकीकत इंसाफ पसंद लोगों को पसंद करता है। इसी तरीके से हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर बयान करती हैं कि एक बार मेरी माँ मेरे पास आई और मुशरिका थी फ़ी अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में, उनके हयात ही में। फस्तफ्तैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु इन्न उम्मी क़दिमत व हिय राग़िबा अफ़असिलु उम्मी क़ाल नअम सिली उम्मी। वो कहती हैं कि तो मैंने उनके बारे में अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि मेरी माँ आई हुई हैं और वो मुझसे मिलना चाहती हैं या मुझसे कुछ चाहती हैं, तो क्या मैं उनके साथ सिला रहमी करूं, उनके साथ हुस्न सलूक करूं? तो अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ बिल्कुल, अपने माँ के साथ तुम हुस्न सलूक करो। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अपने मोमिन भाइयों पर रहम करें, उनके साथ नरमी से पेश आएँ, उनके लिए अपने दिल में नरम गोशा रखें। इसकी बड़ी फजीलत आई हुई है। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरल मुमिनीन फ़ी तराहुमिहिम व तवाद्दुहिम व तआतुफ़िहिम कमसलिल जसदि इज़ा इश्तका अद्वन तदाअ लहु साइरु जसदिहि बिस्सहरि वल हुम्मा। कहा, तुम देखोगे मोमिनों को उनके आपस में रहम करने में, आपस में मोहब्बत करने में, आपस में नरमी और भलाई करने में, आपस में तआतुफ़ करने में, कमसलिल जसद, एक शरीर की तरह, एक जिस्म की तरह, इज़ा इश्तका अद्वन तदाअ लहु साइरु जसदिहि, कि जब जिस्म का एक अज़ू बीमार पड़ जाता है, उसको तकलीफ़ हो जाती है, तो उसका सारा जिस्म दिन रात भर उसके साथ जागता रहता है, उसको भी बुखार होता है। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो जैसे जिस्म के एक अज़ू को तकलीफ़ होती है तो सारे आज़ा को तकलीफ़ होती है, वैसे मोमिनीन को चाहिए कि जब एक अज़ू को तकलीफ़ हो, तो एक आदमी को तकलीफ़ हो, तो सारे मोमिनों को तकलीफ़ हो उससे। इसी तरीके से औरतों और खादिमों के साथ भी हुस्न सलूक करना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत आई हुई है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने कहा, उस्तौसू बिन्निसा, मैं तुम्हें औरतों के बारे में वसीयत करता हूँ, यानी कि औरतों के साथ हमेशा भलाई करना, हमेशा उनके साथ नरमी करना, ये इसकी मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिन दिलइन, क्योंकि औरत जो है ये टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है। कमर के ऊपर जो टेढ़ी हड्डी होती है उसी को दिला बोलते हैं। वइन्ना अवज शैइन फ़ी दिल आला, और अल्लाह के नबी कहते हैं दिला में से, ये टेढ़ी हड्डी में जो सबसे ज़्यादा टेढ़ा है वो उसका ऊपरी हिस्सा है। फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरतहु, बस अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो उसको तोड़ दोगे। वइन तरकतहु लम यज़ल अवज, और अगर उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी। फ़स्तौसू बिन्निसा, इस वजह से तुम जो है औरतों के बारे में भलाई ही करना, उनके बारे में अच्छी राय रखना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत किया है। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने खिदमत की कितने साल? 10 सिनीन, 10 साल। फमा क़ाल अली उफ़्फ़िन, तो उन्होंने कभी मुझे उफ़ तक नहीं कहा।
वला लमा सनअता, और ये भी नहीं कहा तुमने ऐसा क्यों किया, वला अला सनअता, और ये भी नहीं कहा कि इसको क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी उनके पास जो खादिम होता था उससे ये नहीं कहते थे तुमने ये क्यों नहीं किया, या अगर ऐसा कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी नहीं कहते थे, और वो हमारे लिए आइडियल और नमूना है। तो उन्हीं के हिसाब से हमें रहना चाहिए, उन्हीं के तरीक़े पे हमको चलना चाहिए, और औरतों के साथ ख़ास तौर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि औरतें बेचारी अपने यहाँ हमारे समाज में तो अपने माँ बाप को, अपने घर बार को छोड़ के आपके घर आती हैं। तो आप सोचो कि अपने माँ बाप को छोड़ के आपके पास आ गई है और आप उसको मारते पीटते हो, तकलीफ़ देते हो, तो बताओ कैसे चलेगा घर, कैसे चलेगा आपका, कैसे आपके बच्चों की वो तरबियत करेगी। बहरहाल सोचने की ज़रूरत है, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप इस ताल्लुक़ से सोचें। और आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला कोई अच्छी कुर्सी दे दे, कोई अच्छा रुतबा दे दे, कहीं प्रधान बना दे, मिनिस्टर बना दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे, वज़ीर बना दे, या राजा ही बना दे, या आज के ज़माने में जो चलता है प्रेसिडेंट ही बना दे, तो उसको अपने रियाया के साथ हुस्न सलूक ज़रूर करनी चाहिए, और उनके जितने भी हाजतें हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक राई है, चरवाहा है, और उससे उसके रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी हर एक अपनी जगह पे अमीर है, और उससे उसके इमारत के नीचे जितने लोग हैं उनसे सवाल किया जाएगा। तो और ये लंबी हदीस है, इन्हीं दो टुकड़ों से सारे हदीस का जो लुब्बे लुबाब है वो मालूम हो जाता है। तो हमें अगर अल्लाह तबारक व तआला अमीर बनाता है, और हर आदमी वैसे भी अपने घर का अमीर होता है, तो उससे उसके नीचे जितने उसके बाल बच्चे, जितने उसके रिश्तेदार हैं, सबके बारे में उससे सवाल किया जाएगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। और इसी तरीके से एक हदीस में है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रइयतन यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं अमारत दे दी है, और वो जिस दिन भी मरता है ऐसी हालत में मरता है कि वो अपने नीचे जो उसके रियाया थे, जो उसकी प्रजा थी, उसके साथ उसने धोखाधड़ी की है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम में डालेंगे, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हराम कर देंगे। इसी तरीके से हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपने मोमिन, अपने मुस्लिम भाई के हाजत रवाई करें। अगर उसके किसी काम आ जाएं, या कोई उसका काम हम कर सकते हैं, तो हमको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मन कान फ़ी हाजति अख़ीहि कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। जो अपने भाई के हाजत के लिए कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत रवाई कर देता है, उसकी हाजत को पूरी कर देता है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपने समाज में जिससे भी हमें हुस्न सलूक करने का कुरान और हदीस में हुक्म दिया गया है, उन सब के साथ हमें हुस्न सलूक करना चाहिए। ख़ास तौर से अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बीवी बच्चों से, इनसे तो ख़ास तौर से हुस्न सलूक करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें हर एक के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ दे, और ख़ास तौर से अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।